Uh, First of all, good morning to all the learners, prospective learners who all are present here for this session. As you all are aware that, and as you all must have received the email also, this session is being organized specially or only for those learners who had registered for admission in July 2020 session, but they have not yet completed their form by paying the fees or by getting it confirmed. The application is still pending. So this session is being organized for such learners only. Today we will be discussing the problems which these learners are facing, their doubts or any queries whichever they have, which is stopping them from taking the admission to complete their admission. All those doubts will be cleared. So topic related to that only will be discussed. There might be few cases where your admission might have already been confirmed, but still you have got the email for non-completion of the form. This is because many of the times students create two different user ID and password. That is why they receive two one at one email ID they get their confirmation, the second one they do not get because they have not paid the fees. So basically this program is for the students who have registered for admission in IGNOU, but they have not yet made the payment. The last date for admission has been extended up to 30th November for annual based programs. So today we have our regional director sir also who will be guiding the learners and to us also in the beginning. After that we will discuss a little bit more and then we'll go for queries. So first of all, I invite our regional director sir to please guide the students. Okay, thank you, Shashank. Good morning to all. I hope you are all doing well. This is the meeting organized to help the students, those who are struggling, those who are having the problem or the issues while taking the admission. I hope all the students, those who present this meeting, are not completed their admission. Maybe if some of them, those who have completed their admission, if they are having any issues related to mera enrollment number, I am unable to find, or the study material naimila, or classes not started, or confirmation naimila, such type of the students, if anyone is there, it is not the correct platform to discuss that issues. I am telling very clearly, this meeting has been organized to clear the doubts of the prospective learners, those who have not yet completed their admission so far. If they are struggling to take their admission, we are going to help now by giving you the demo how to take the admission, or if any concern, if any issue related to your admission, taking of the admission, our staff will help you now itself and resolve your issues. I request the students, if anyone is having the queries to ask, you all can join on Friday 11 o'clock. That is the Speak with Your Regional Director program. That is for the particularly student queries के लिए. This meeting exclusively organized for admission related issues to discuss, to resolve, to help the students to take the admission. That is, I am telling you very clearly. Okay. And सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. And other thing is the last date for the admissions, master degree, bachelor degree, yearly programs has been. Sir, I made the payment. My this thing late Don't come in the middle. No, Miss Sri Lakshmi, please don't come in the middle. The thing is, the date has been extended up to the 30 November 2020. Then please make use of the facility. And also, we are going to now our admission section staff, Mr. Shashank, will give you the presentation about the admission, taking the process and all the things.
then we will take the student queries related to your problem related to the taking Yeah. of the admission. I'm telling very clearly, Yeah. no queries related to other issues. Okay. Thank you, one and all. Shashank, you can start. यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसे सर ने अभी बताया कि ये जो मीटिंग है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, जिन्होंने अब तक पेमेंट नहीं किया है। अगर आप स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, उनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, आपको मेल इसलिए गया होगा, क्या हो सकता है कि आपने दूसरा ईमेल आईडी या एक और रजिस्ट्रेशन किया हो तो आपको ईमेल गया होगा, वो हो सकता है। लेकिन बाकी ये प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। आप दूसरा फ्राइडे वाला सेशन जो होता है वो सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। और इस सेशन में हम वही डाउट्स लेंगे जिसमें फ्रेश एडमिशन लेने में क्या प्रॉब्लम है, वही डाउट्स लेंगे। बाकी कोई डाउट्स इस सेशन में नहीं लिए जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक प्रेजेंटेशन से, कि किस सर तरीके से एडमिशन। फ्राइडे को कब होगा सर? आप फेसबुक फॉलो कर लीजिए आरसी मुंबई का, सभी लोग, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक आरसी मुंबई का फेसबुक फॉलो कर लीजिए, ठीक है। हम एक प्रेजेंटेशन अभी लेंगे। हेलो सर, ये हेलो। जो असाइनमेंट सबमिशंस है सर, उसका जुलाई देखिए, सीजन के लिए नहीं लास्ट डेट क्या नहीं, है? मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ऐसी कोई भी क्वेरी इंटरटेन नहीं की जाएगी। सिर्फ अगर आपको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम है तभी वो क्वेरीज यहाँ पे ली जाएंगी, उसके अलावा कोई भी क्वेरी नहीं ली जाएंगी। सर मैंने पेमेंट पूरा कर दिया है बट फिर भी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है, उसका क्या करें? हाँ तो रुक जाइए ना, वो देख लेंगे फिर हम, अभी वेट करिए। ऐसा कुछ क्वेरी है तो देख लेंगे, इसके अलावा कोई क्वेरी होगी, असाइनमेंट सर सबमिशन, इंडक्शन मीटिंग, वो सब नहीं दिए जाएंगे। सर मैंने पेमेंट तो कर दिए, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि खाली फी पेंडिंग करके आ रहा है। ठीक है, मैंने हम देख दूसरे। लेंगे, आप इसके बाद देख लेंगे, अभी रुक जाइए। ठीक है। हेलो हेलो नहीं, अभी प्लीज, अभी कोई क्वेरीज नहीं लेंगे हम, सॉरी। तो ये एक सिर्फ प्रेजेंटेशन है जो हम प्रेजेंट करेंगे थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले, आप सब लोगों ने इग्नू में एटलीस्ट रजिस्टर तो किया ही है, तभी आपको कुछ ना कुछ मिल गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ तो पढ़ा होगा, एटलीस्ट गूगल सर्च किया होगा, प्रोस्पेक्टस जो पढ़ा होगा, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा इग्नू के बारे में। लेकिन फिर भी ये स्लाइड जो है ये आपको दिखा रही है कि IGNOU, about IGNOU, what all IGNOU is about. So basically, Open University, the only national open university in India, which was formed in 1985, and the goals or the objectives of this university are as below, that is democratizing higher education, providing access to high quality education. ये सारी चीजें ऐसी हैं which you all will be experiencing once you take the admission and once you go through your studies. ये सारी चीजें you all will experience. Second thing, why IGNOU? Why should you choose IGNOU only when you come for distance education? There are number of reasons. First thing, that IGNOU is present all over India, across India. Even if you get transferred, you get shifted or anything from one city to another, you can get your regional center and study center shifted in that particular city, town, district, wherever you are going. This is the another thing. Then there are other number of points which we all can see on the screen. We will not go that much into details of this. Individualized study, that is flexibility in terms of place, teacher inbuilt material, programs. All programs are recognized by the concerned authorities, whether it is UGC, AICTE, NCTE, जो भी एजेंसी जिस प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज करती है, वो सारे प्रोग्राम्स ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये सारी चीजें हैं, आपको मालूम ही होगी ऑलरेडी कई सारी चीजें। एडमिशन इन इग्नू आपको पता ही है, पूरी तरीके से एडमिशन जो है वो ऑनलाइन है। कोई भी प्रोग्राम है, मेजोरिटी 99.99% प्रोग्राम्स जो है
वो ऑनलाइन कर दिए गए। सिर्फ 1-2 प्रोग्राम्स हैं जो ऑफलाइन है, जिसमें आप में से कोई भी नहीं है उसमें से, सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, इसके लिए आप यहाँ पे बुलाए गए हैं। कोई भी तरीके का हार्ड कॉपी कहीं पे सबमिशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही सब कुछ अप्लाई करना। अभी एडमिशन अप्लाई कैसे करना है, हमारी एक वेबसाइट है ignuadmission.samarth.edu.in। इस लिंक पे आप जाएंगे तो ये पेज खुल जाता है, जो आपके स्क्रीन पे बस आएगा थोड़ी देर में ही। ये पेज जैसे ही खुलता है, आप सब लोग यहाँ पे गए होंगे, आपने नया रजिस्ट्रेशन भी किया होगा, आपने अपना यूजर नेम बनाया होगा, अपना पासवर्ड बनाया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में करते हैं, जो कि सर्कल में था ओवल शेप में, यहाँ पे आपको यूजर नेम पूछता है, आपका एड्रेस पूछता है, आपका ईमेल एड्रेस पूछता है, आपका नाम पूछता है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो है वो जानने के लिए, वो है आपका नाम। यहाँ पे लिखा है एज पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। सो मैनी ऑफ द टाइम्स, जैसे अगर आपका नाम चेंज हो गया है 10th और 12th के बाद, फिर भी स्टूडेंट्स ये सोच के कि हमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही नाम डालना होता है, वो नाम डाल देते हैं, बाद में वो नेम चेंज कराने आते हैं। देखिए, इफ़ यू हैव एनी प्रूफ कि आपका जो नाम, जैसे नाम चेंज होता है, या तो मैरिज सर्टिफिकेट होता है या तो गैजेट नोटिफिकेशन होता है, इन दोनों में से कोई चीज़ अगर है तो, और आपका नाम चेंज हुआ है, तो आप वो अपना नाम, नया नाम डाल के वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा। तो ये एकदम परफेक्ट नहीं है कि एज पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए। अगर आपका नाम चेंज हो गया है और आपके पास गवर्नमेंट प्रूफ है, गवर्नमेंट प्रूफ मतलब नेम चेंज का गवर्नमेंट प्रूफ है, तो आप जो है यहाँ पे अपना नया नाम डाल सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपने डालते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड बना ही लेते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के बाद वही जो मैंने अभी जस्ट बताया, इस पर्टिकुलर स्लाइड में वही सारी चीजें हैं कि किस तरीके से आपको नाम अपना डालना होता है। ईमेल आईडी अपनी करेक्ट डालिए, अपना फोन नंबर करेक्ट डालिए। उसके बाद आता है, एक बार आपने यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद आपको लॉगिन करना है। आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। बेसिकली टोटल 8 स्टेप्स होते हैं आपको एडमिशन कंफर्म कराने के लिए, एडमिशन अप्लाई करने के लिए। सब टोटल 8 टैब्स होते हैं। स्टेप्स बोले या टैब बोले, हर एक स्टेप को या टैब को आपको कंप्लीट करते जाना है, और उस पर्टिकुलर टैब को फिल करके, सेव करके आगे बढ़ते जाना है। सबसे पहला आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपने ऑलरेडी किया होगा, कई स्टूडेंट्स ने। बेसिक जो डिटेल्स हैं, आपका नेम, जेंडर, रिलीजन, कैटेगरी, वो सब डालना है। अगर आप SC/ST कैटेगरी में हैं तो आपको फिर पूछेगा कि डू यू विश टू अवेल फी वेवर और कंसेशन अवेलेबल टू SC/ST स्टूडेंट्स। देखिए, सारे प्रोग्राम्स में फी एग्जामेशन नहीं मिलता है SC/ST कैंडिडेट्स को। ऐसे टोटल 100 प्रोग्राम्स हैं जुलाई 20 सेशन में, जिसके लिए आपको फी एग्जामेशन मिलेगा। ऐसे सिर्फ 100 प्रोग्राम्स हैं, वो भी तब मिलेगा अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं और अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको फी एग्जामेशन मिलेगा। अगर आप वो एलिजिबल हैं तो येस करिए, नहीं तो नो करिए। वैसे भी अगर आप येस करेंगे और एलिजिबल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली भी आपको फी एग्जामेशन नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो टैब था उसका एक स्क्रीनशॉट ये है। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी डिटेल्स मांगी गई हैं। दूसरा आता है प्रोग्राम। तो आप कौन सा प्रोग्राम चूज करना चाहते हैं। प्रोग्राम टाइप मास्टर, बैचलर, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, वो आपको डालना है। वो डाल देने के बाद आपको मोड ऑफ स्टडी चूज करना है। मोड ऑफ स्टडी में आप सब लोगों को सिर्फ चूज करना है ODL। आप ऑनलाइन चूज करेंगे तो आप RC मुंबई के स्टूडेंट फिर नहीं रह जाएंगे, और आपको यहाँ से सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। आपको ODL चूज करना है। उसके बाद आपको आपका प्रोग्राम चूज करना है, रीजनल सेंटर चूज करना है। अभी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कई बार, जैसे कि ऐसे 37 या 38 प्रोग्राम्स हैं जो डायरेक्टली स्कूल से सपोर्ट मिलेगा, उसमें रीजनल सेंटर का कोई रोल नहीं होता है। अगर वैसा आप प्रोग्राम चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो रीजन कोड फॉर एडमिशन है उसमें स्कूल का सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको मुंबई चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सारी डिटेल्स जो भी हैं, ये थर्ड है क्वालिफिकेशन। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 क्वालिफिकेशन आपका होना ही चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स, आपने ग्रेजुएशन या 12th किया तो कौन से स्ट्रीम में किया, कब पास हुए, कितना परसेंटेज था, कौन सा डिवीजन था, कौन सा बोर्ड था। अगर आप अपना ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बोर्ड कोड में आपको 9999 ये कोड डालना है, दैट इज अदर्स। उसमें आपको और दूसरा कोई कोड नहीं डालना है। उसके बाद आता है कोर्सेज।
आपने कौन सा कोर्स आपको मिल रहा है। जनरली कोर्सेज कंपलसरी होते हैं, कोर्सेज मतलब सब्जेक्ट्स सर जनरली, एक तो डाउट वो था, अभी तक फाइनल ईयर का हमारा रिजल्ट आया नहीं है, तो सर हाँ वो हम आ ग्रेजुएशन। जाएंगे, आ जाएंगे, रुक जाइए रुक जाइए। अ, सबसे पहले आपको कोर्सेज जो होते हैं, कोर्सेज यानी कि सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स जो जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है उन्हीं को यहाँ पे हम कोर्सेज बोलते हैं। और प्रोग्राम होता है, जैसे आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम है, लेकिन उसके अंदर आपका सब्जेक्ट है अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज या फिर हिस्ट्री, वो सब सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो या कोर्सेज जिनको हम बोलते हैं, वो कोर्स सिलेक्शन आपको करना होता है। जनरली तो कंपलसरी होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन जहाँ पे भी इलेक्टिव है तो इलेक्टिव चूज करते वक्त आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार इलेक्टिव चूज कर लिया तो चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, चेंज नहीं होता है। बीए बीकॉम बीएससी में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, बाकी प्रोग्राम में चेंज होगा तो आपको फीस भरनी पड़ेगी। इसी टैब में आपको चूज करना पड़ता है कि आपको किस तरीके का मटेरियल चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए या सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। अगर आप सॉफ्ट कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर प्रोग्राम फीस, और अगर आप हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी और आपका हार्ड कॉपी बाद में आपके एड्रेस पे आ जाएगा। और अगर आप बाय डिफॉल्ट वो हार्ड कॉपी सेलेक्ट करता है तो आपको पहले चूज करना पड़ेगा सेलेक्ट करते वक्त, और एक बार आपने टाइप ऑफ मटेरियल चूज कर लिया तो उस पर्टिकुलर सेमेस्टर या ईयर में आप टाइप ऑफ मटेरियल चेंज नहीं कर सकते हैं। ये टैब है जो यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिखेगा थोड़ी देर में, जो ओवल से शेप में सर्कल किया हुआ है, वहां पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म। आपको उसे चेंज करना पड़ेगा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो। जैसे यहाँ पे कंपलसरी कोर्सेज ऑटोमेटिकली दिए हुए हैं, इलेक्टिव कोर्सेज हैं जो आपको सेलेक्ट करने हैं। वो सेलेक्ट जब आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी के साथ सेलेक्ट करना है। अगला आता है एड्रेस डालना है। एड्रेस आपको अपना प्रॉपर्ली डालना है, करेक्ट एड्रेस डालिए, वरना बहुत केसेस में स्टडी मटेरियल रिटर्न आ जाता है, आपके एड्रेस पे भेजा जाता है पर वो मटेरियल रिटर्न आ जाता है हमारे पास। तो एड्रेस डालते वक्त प्रॉपर एड्रेस डालिए ताकि वो रिटर्न ना हो या फिर पोस्ट ऑफिस से कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। हाँ, उसके बाद आता है अपलोड सेक्शन। सिक्स्थ टैब जो है वो है अपलोड सेक्शन का। अपलोड सेक्शन के बाद मतलब आपने जितनी भी चीज़ें डाली हैं, अब आप जो भी बता रहे हैं कि 10th है या 12th है या जो भी सारी चीज़ें हैं उसका आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करना है। आपको इसमें अपना फोटो सिग्नेचर स्कैन करना है। फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके आपको जेपी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही डालना है, जो कि 100 केबी मिनिमम साइज होना, मैक्सिमम साइज हो सकता है। उसके अलावा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 10th 12th, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, वो सारी चीज़ें भी इसमें आपको 200 केबी तक का मैक्सिमम साइज हो सकता है, वो आप जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में डाल सकते हैं। अभी कई बार इशू आता है कि ये साइज कैसे हम कम कर सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें अभी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन भी साइज छोटा बड़ा हो सकता है। अगर आपके पास पीडीएफ है तो जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा, जेपीजी में है तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाती हैं, सिर्फ गूगल पे अगर आप टाइप करेंगे तो भी हो जाएगा, तो इसमें कोई बहुत इशू नहीं आना चाहिए आपको। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज़ अपलोड कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने वाला है उसको भी दिखना चाहिए। आपका 10th का मार्कशीट आपने 200 केबी के अंदर तो डाल दी, लेकिन वो क्लियर ही नहीं, आपका उसमें नाम ही नहीं दिख रहा है, तो वेरीफाई करने वाला वेरीफाई कैसे करेगा कि आपका ही मार्कशीट है या नहीं है। तो ऐसे केस में डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, और अगर डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो फिर बाद में वो रिमूव भी हो सकती है, लेकिन वो रिमूव तभी होगी जब आप क्लियर डॉक्यूमेंट फिर अपलोड करेंगे। तो ये एक और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वापस से वो उसका भी स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे आपको दिखा देंगे, फोटो का, सिग्नेचर का, 10th 12th या कुछ और है, कैटेगरी आपने अप्लाई किया है तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सारे सर्टिफिकेट्स डालने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टैब जो आता है वो आता है प्रीव्यू सेक्शन का। प्रीव्यू सेक्शन वो है जहाँ पे आपने जितने भी पीछे 6 टैब्स भरे हैं उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि पूरा आपने जो फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू आ जाएगा, आपको उस प्रीव्यू में देखना है कि आपने जो भी भरा है वो सही भरा है या नहीं। अगर आपको कहीं दिखता है कि नहीं मैंने यहाँ पे गलत भर दिया है, तो आप वहाँ पे मॉडिफाई दिस सेक्शन करके ऑप्शन आता है, उसको जाके आप डायरेक्टली वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने चेक बॉक्स पे टिक करके सबमिट कर दिया प्रीव्यू टैब को, तो आपके फॉर्म में कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो एक बार आपने प्रीव्यू टिक कर दिया तो किसी चेंज की उम्मीद मत रखिए। इसके लिए जो प्रीव्यू सेक्शन है वो बहुत ही ध्यान से और बहुत सावधानी से पढ़ के उसके बाद ही उसको आप टिक करिए। जैसे कि यहाँ भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट में, मॉडिफाई दिस सेक्शन करके आया है, रेड कलर, रेड ओवल शेप में उसको
डाला हुआ है, आप सब लोग वहां देख सकते हैं। फाइनली आता है पेमेंट करने के लिए, दैट इज पेमेंट गेटवे। आप जब भी पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपको 2 गेटवे मिलेगा। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं हमको किस गेटवे में जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जिस गेटवे में जाना है आप गेटवे में जा सकते हैं। आप कोई भी बैंक का कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी बैंक का हो। और गेटवे आपके ऊपर है, चाहे गेटवे 1 चूज करिए, चाहे गेटवे 2 चूज करिए, कोई भी इशू नहीं है, आप कोई भी गेटवे चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने स्क्रीनशॉट लगाया है, सपोज फीस है तो फीस के लिए गेटवे 1 आता है, गेटवे 2 आता है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फी एग्जामिशन के लिए एलिजिबल हैं और आपने सारी चीजें लगाई हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपसे फीस मांगेगा ही नहीं। जो पोर्टल है वो आपसे फीस नहीं मांगेगा, सिर्फ एक अंडरटेकिंग आपसे चेक बॉक्स में टिक करा लेगा और फिर आपको विदाउट फी पेमेंट आपका एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि हमने पेमेंट कर दिया, उसके बाद क्या? पेमेंट कर देने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में जाता है। एक टीम है CSRC की, सेंट्रलाइज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेल, इग्नू न्यू दिल्ली, हमारी वो टीम है एडमिशन की। वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस को वेरीफाई करते हैं, आपने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं, सारी चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं। आप एलिजिबल है कि नहीं, आपका बोर्ड वैलिड है कि नहीं, आपका यूनिवर्सिटी वैलिड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती हैं। चेक करने के बाद 20 से 25 दिन में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। इंटीमेशन जाता है ईमेल पे कंफर्मेशन होने के बाद। अगर आपको इंटीमेशन नहीं मिला है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है पर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। ऐसे केस में आपको आप हफ्ते 10 दिन में आपको आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने बनाया था उसको बार बार यूज करके लॉगिन करते रहिए, हफ्ते में एक बार। कंफर्म होगा तो ऑटोमेटिकली वहां दिखेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। और एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसी पोर्टल से यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के उसी पोर्टल में डाउनलोड आईडी कार्ड का ऑप्शन आता है और 10 डिजिट का एक एनरोलमेंट नंबर आता है। तो वो आईडी कार्ड भी आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना होता है। इस तरीके से होता है। और एक बार एडमिशन कंफर्म हो गया फिर क्या? कंफर्म होने के बाद डाउनलोड द आईडी कार्ड एंड कीप द सॉफ्ट कॉपी विद यू। कलर प्रिंट आउट भी आपको लेना है, वो आप बाद में ले सकते हैं, प्रिफरेबली कलर प्रिंट आउट। उसके बाद सॉफ्ट कॉपी अगर आपने ऑप्ट किया है तो आप egyancourse.ac.in पे जाइए या फिर इग्नू ई कंटेंट ऐप डाउनलोड करिए और मटेरियल पढ़ना शुरू कर लीजिए। अगर आपने हार्ड कॉपी के लिए ऑप्ट किया है तो थोड़े टाइम वेट करिए, जब तक आपका हार्ड कॉपी नहीं आता है तब तक आप भी सॉफ्ट कॉपी यूज कर सकते हैं। इग्नू का जो स्टडी मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी है वो एक ओपन सोर्स में अवेलेबल है, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो इग्नू का हो या ना हो, कोई भी पर्सन हो, वो ई ज्ञान कोश या इग्नू ई कंटेंट ऐप डाउनलोड कर सकता है और इग्नू के जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो सारे के सारे वो जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो सारे के सारे वो देख सकता है या पढ़ सकता है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। इस तरीके से ओपन सोर्स में वो अवेलेबल है। बाकी सारी चीजें आपको एक इंडक्शन मीटिंग के दौरान बताई जाएंगी। ऑलरेडी बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और सेमेस्टर प्रोग्राम का लॉट 1 का इंडक्शन मीटिंग हमने कंडक्ट कर दिया है। मतलब जितने भी लोगों का एडमिशन 29 अक्टूबर के पहले कंफर्म हो गया था, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम, सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम या बैचलर डिग्री प्रोग्राम में BSW को छोड़ के, उन सारे स्टूडेंट्स का इंडक्शन मीटिंग हमने 13 नवंबर तक कंप्लीट कर दिया है। और सारे स्टूडेंट्स को SMS भी गया था, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS गया था इंडक्शन मीटिंग के लिए। बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका भी इंडक्शन मीटिंग किया जाएगा, मास्टर डिग्री का है या जो बाकी बचे स्टूडेंट्स हैं उनका इंडक्शन मीटिंग फिर से किया जाएगा। अभी कुछ आपको क्वेरी है तो आप क्वेरी कहाँ पे डाल सकते हैं? सबसे पहले तो आप ईमेल हमें कर सकते हैं rcmumbai@ignu.ac.in। उसके अलावा आप हमारा जो वेबसाइट है, नेशनल वेबसाइट है ignu.ac.in, या फिर रीजनल सेंटर की जो हमारी वेबसाइट है rcmumbai.ignu.ac.in, इस पे आप रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। और उससे भी ज्यादा रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे आपको हमारे फेसबुक पेज पे। हमारा फेसबुक पेज यानी कि इग्नू रीजनल सेंटर मुंबई का फेसबुक पेज, जो कि है @ignu मुंबई, इस पे जाके भी आप सारे अपडेट्स ले सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था आप सबको बताने के लिए कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। आज जैसा कि हम भी देख सकते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन ऑलरेडी कंफर्म हो गया है लेकिन फिर भी वो इस मीटिंग में आए हैं। हो सकता है उनको कहीं से लिंक मिल गया हो इसलिए वो मीटिंग से आए हो, या फिर उन्होंने ऑलरेडी 2 आईडी बनाई हो, एक में कंफर्म हो गया, एक में पेमेंट नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी उनको हो सकता है कि ये लिंक मिला हो। लेकिन ये मीटिंग exclusively it is just for those learners who have registered, who have applied but they have not made the payment or they have not completed their application form.
ये मीटिंग सिर्फ ऐसे ही लर्नर्स के लिए बुलाई गई थी। अभी हम मैसेजेस भी देख लेंगे। तो ओवरऑल मैं हम यही बात कर रहे थे कि ये जो पोर्टल है एडमिशन लेने के लिए ignuadmission.samarth.edu.in, ये बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली पोर्टल है। अगर आप ध्यान से करें तो आप अपने मोबाइल फोन को यूज करके भी अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन आपका कंफर्म भी हो जाएगा अगर आप आराम से करें तो। सर मेरे ना सर हाँ। इंजीनियरिंग के 7 सेमेस्टर्स के रिजल्ट आ गए, बट 8 सेमेस्टर का नहीं आया है। तो अभी मैं पेमेंट करूंगा तो फिर मेरा एडमिशन कंफर्म होगा कि नहीं? हाँ, आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पेमेंट कर दीजिए, आपको प्रोविजनल एडमिशन हाँ। दे दिया जाएगा और आपको 31 दिसंबर तक का टाइम मिलेगा आपका जो लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है वो सबमिट करने के लिए। लेकिन अगर आप उस टाइम तक सबमिट नहीं कर पाते, बोलिए। हाँ सर, मतलब मेरे को और एक डाउट था सर, अभी जो ये जो असाइनमेंट्स है वो उसका डेट क्या है? क्योंकि अगर ये सेमेस्टर का नहीं होगा नहीं तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का मुझे असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। कौन सा प्रोग्राम है आपका? ये मास्टर्स इन ये आईपीआर सर, पीजी डिप्लोमा इन आईपीआर। हाँ, उसका एनुअल पैटर्न एडमिशन है। तो आपका असाइनमेंट वैसे भी आपको अप्रैल में सबमिट करना होगा, अभी नहीं करना है आपको असाइनमेंट। अप्रैल में करना है क्योंकि ये सेमेस्टर का एंड एग्जाम कब होने वाला है? नहीं, सेमेस्टर नहीं है वो। आपका जुलाई सेशन का एग्जाम अभी होगा ही नहीं, वो जून में ही होगा। पीजीडीआईपीआर का असाइनमेंट सबमिशन एग्जामिनेशन नेक्स्ट साइकिल में है, जून साइकिल के लिए, अभी नहीं है। हेलो मैंने सर, और फॉर्म भरा था उसमें तो आया था। 1 मिनट, एक करके मत करिए आप लोग। मैं चैट बॉक्स में अभी बोलूंगा, उसके बाद आप लोग नाम टाइप करिएगा तो हम कॉल करेंगे। अभी किसी को भी कोई क्वेरी है तो आप लोग अपना नाम चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिखने के बाद एक एक करके आपको कॉल किया जाएगा। और प्लीज, जैसे सर ने भी शुरू में ही बोला कि ये मीटिंग सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फ्रेश एडमिशन नहीं हुआ है अब तक, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है। तो वही लोग अगर क्वेश्चन पूछें तो ज्यादा सही होगा। उसके अलावा हम क्वेश्चन के आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप फ्राइडे की जो हमारी हर फ्राइडे ई शिक्षा की बात रीजनल डायरेक्टर के साथ होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका अपडेट वो जनरली 11 AM को ही हर फ्राइडे की सुबह 11 AM को होता है। उसका लिंक और बाकी डिटेल्स आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, तो आप वहां जाके वो डिटेल्स पा सकते हैं। तो प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इंडक्शन मीटिंग, स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट सबमिशन या फिर ऐसे क्वेश्चंस प्लीज ना पूछे। ठीक है, आगे भूषण, आप अपना क्वेश्चन आप पहले पूछ लीजिए। सर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म बहुत दिनों से भरा हुआ है, अभी तक मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ सर। ठीक है, आपके पास कंट्रोल नंबर है आपका? सर एनरोलमेंट नंबर अभी तक आया नहीं है सर। कंट्रोल नंबर है। हाँ यही सर। सर बताओ क्या? हाँ बताइए। सर 2020 हाँ 2068 हाँ 2946 2946 एस। आपने कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है? सर बैचलर ऑफ आर्ट्स। आपका रीजनल सेंटर क्या है? सर नवी मुंबई। नवी मुंबई नहीं, आपने नेवी मुंबई चूज किया होगा। नेवी मुंबई। हाँ, आपने नेवी मुंबई क्यों चूज किया? आप नेवी में है? नो सर। तो आपने नेवी मुंबई क्यों चूज किया रीजनल सेंटर में? आपको मुंबई चूज करना था। ये नेवी मुंबई सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आरसी नेवी में है। अच्छा सर, पता ही नहीं था सर इसके लिए मुझे। कोई बात नहीं। अभी आपका स्टेटस क्या है एडमिशन का वो हम नहीं बता सकते क्योंकि आप हमारे रीजनल सेंटर में आपका एडमिशन नहीं हुआ है। आप आरसी नेवी मुंबई, आरसी नेवी 72@ignu.ac.in। हाँ हेलो सर। हेलो सर। भूषण जी से बात हो रही है, अभी भूषण जी से बात हो रही है। सर एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो नेवी मुंबई आप बोल रहे हैं ना, वो नेवी मुंबई नहीं है, वो नवी मुंबई है। ठीक है, अभी मैं भूषण जी से बात कर रहा हूँ, प्लीज रुकिए। तो नहीं, भूषण जी आप जो हेलो सर, आप ना गलत समझ रहे हो। नेवी नहीं है, ये नवी है। नवी मुंबई, न्यू बॉम्बे। इट इज नॉट नेवी। सर मैं स्वप्निल गायकवाड़ बात कर रहा हूँ।
I intervened because there was going something wrong. ठीक है। ये भूषण not Navy भूषण Mumbai, it's Navi Mumbai. भूषण जी Swapnil, let sir talk. Swapnil, let sir talk, please. भूषण जी Okay, sir. आप Yes, yes, sir. भूषण जी आपका जो फॉर्म है वो आपने रीजनल सेंटर नेवी 72 में अप्लाई किया हुआ है, तो आपका एप्लीकेशन अगर कंफर्म हुआ होगा आप एक बार यूजर नेम आईडी पासवर्ड डाल के देख लीजिए, नहीं तो आप रीजनल सेंटर नेवी मुंबई का जो मेल आईडी है उस पर आप मेल कर दीजिए, मैं मेल आईडी लिख दे रहा हूँ। हेलो सर। हाँ जी सर सुनील दुबे बात। शशांक, एक मिनट है ना। माय डियर लर्नर्स, देयर इज one regional center we are having in Mumbai, that is for the Navy people के लिए we have the exclusive regional center, that is Navy regional center. The same thing is only is telling, there is no confusion of the Navi Mumbai or the Navy Mumbai. ऐसा है all my, but the center Navy people there is military center. That's why our staff is telling Navy regional center. This boy, whomever is the Bhushan, has applied for the regional center 72. That data regional center 49, regional center Mumbai cannot access. That's why you should be very clear, very careful while opting the center. This RC 49 is for the general public. RC 72 is only exclusively for the Navy people. Some of the students, by mistakenly, they are selecting the RC 72. That is the problem. That's why you should be very careful. Suppose if you have selected the RC 72, you have to write email to RC Navy 72 at igno.ac.in, or otherwise INEP Mumbai at gmail.com. You have to consult them. We are not having any access of your data. Okay? I think Shashank, you can go ahead. ओके सर। तो भूषण जी मैंने ईमेल आईडी लिख दिया है आरसी नेवी का, आप वो ईमेल आईडी पे मेल करिए और एडमिशन कंफर्मेशन की बात कर लीजिए। जहां तक है दूसरी बात, आपको दिसंबर के मंथ में आपको आपका रीजनल सेंटर चेंज कराना पड़ेगा, वो आप हमें बाद में ईमेल कर दीजिएगा, वो बात की बात है, वो आपका बाद में आरसी नेवी मुंबई से नेवी मुंबई से रीजनल सेंटर मुंबई में शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंड नेम इज शर्मिला। सर मैंने तो एक ही एक्चुअली क्या हुआ था, पहले मैंने समर्थ पे ये क्रिएट किया था एक आईडी, फिर उसका पासवर्ड मैं भूल गई थी, तो रिट्रीव करने के लिए ओटीपी की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, ओटीपी आ ही नहीं रहा था, तो सेकंड आईडी आई क्रिएटेड एंड उसके थ्रू मैंने प्रॉपरली पेमेंट सब किया था। सडनली पता नहीं पेमेंट मतलब पेमेंट कंफर्मेशन सब आ चुका था, मुझे आईडी मिल चुका है, स्टूडेंट ये वो सब मिल चुका है, फिर भी पेमेंट पेंडिंग करके दिखा रहा है। अच्छा, आपको अगर आईडी मिल गया है, आपके पास आपका कंट्रोल नंबर है आईडी वाले का? हाँ है, लेकिन एनरोलमेंट नंबर ही आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बोलिए। हेलो, हाँ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताइए। हेलो हाँ शर्मिला जी, आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताइए। हाँ बता तो रही हूँ, पता नहीं आपको क्यों सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर से बताइए। 98 हाँ 194 हाँ 83434 83434। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने 4 एप्लीकेशन अप्लाई किए हुए हैं। नहीं क्या हुआ था, क्या प्रोग्राम, नहीं एक सेकंड, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया है आपने? 2 प्रोग्राम से, एक CPAHM
यानी हाँ। हिंदुस्तानी म्यूजिक सर्टिफिकेट और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी आईटी का जो आईडी है वो ठीक है, वो उसमें कोई बिल्कुल भी कोई तनिक भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये जो हाँ हाँ सीपीएचएम के लिए हाँ क्या किया था, पहले मैंने आईडी एक सेपरेट क्रिएट किया था, क्योंकि वो सीआईटी का एप्लीकेशन से मुझे दूसरा कोर्स में अप्लाई करने को नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों। तो सेपरेटली सीपीएचएम के लिए अलग से एक आईडी क्रिएट किया था। पासवर्ड भूल गई, पासवर्ड रीलॉगिन करते वक्त पेमेंट बाद में करेंगे करके रीलॉगिन करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, नहीं, पासवर्ड भूल एक गई और एक एक मिनट एक रिक्वेस्ट मिनट मैं किया। क्या एक मिनट मैडम, आप बस हाँ, इतना बता दीजिए आपने सीआईटी का एडमिशन कौन से रीजनल सेंटर में लिया है? वो तो ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन ठीक है, मोड है। ऑनलाइन मोड है। सर मुझे और दूसरा दीपक कुमार जी प्लीज वेट कर हेलो लीजिए, प्लीज वेट कर लीजिए, आप चैट जी बॉक्स में प्लीज, ना डालिए। दीपक जी। ठीक है। ओके और ओके दूसरा प्रोग्राम आपने लिया है परफॉर्मिंग आर्ट्स करके कोई प्रोग्राम लिया है? हाँ, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक। हाँ हाँ देखिए क्या है, पहला जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है और दूसरा जो सीआईटी आपने ऑनलाइन मोड में लिया है। हाँ। अभी एक एक करके बात करते हैं। जो आपने हम्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स लिया हुआ है हाँ। उसका जो भी स्टूडेंट सपोर्ट है वो आपको सीधे डायरेक्टली स्कूल से मिलने वाला है। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स ऐसा कुछ कर, एसओपीवीए एक स्कूल अच्छा, है एक न्यू दिल्ली मिनट, में, आपको डायरेक्टली वहीं से सारा सपोर्ट मिलने वाला है। वो आप भी आरसी डब्ल्यू। मुंबई की स्टूडेंट नहीं है। दूसरा सीआईटी का जो आपने ऑनलाइन में लिया है उसका सपोर्ट सर्विसेज भी आपको डायरेक्टली ऑनलाइन मिलेगा, सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन coe@ignu.ac.in। हाँ, उन तो लोगों को बहुत बार। दोनों हाँ, ही प्रोग्राम के लिए आप रीजनल सेंटर मुंबई की स्टूडेंट नहीं है, पहली चीज। अच्छा। हाँ, तो दोनों सपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एक स्कूल से मिलेगा, दूसरा आपको सपोर्ट सर्विसेज मिलेंगी डायरेक्टली सीओई से, सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन से। सीओई को बहुत बार लिखा है मैंने, ये पासवर्ड का हाँ प्रॉब्लम आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है करके, ठीक फिर है भी ठीक कुछ है, सुलझा ही नहीं वे लोग। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उस यूजर आईडी पासवर्ड का सिर्फ एक ही यूज है, वो है आपका आई कार्ड। आप हाँ। कुछ दिन वेट कर लीजिए, अगर आपको आई कार्ड नहीं मिल रहा है थोड़े टाइम आई बाद, कार्ड क्योंकि मिला, अभी आई कार्ड सब मिला आई कार्ड मुझे। मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर हाँ, फिर उस यूजर क्यों आईडी पासवर्ड का। फी पेंडिंग पेंडिंग करके क्यों आ रहा नहीं, है मेरे को? मैं वही बोल रहा हूँ, आपने दो तीन जैसे अभी हमारे आरसी में आपने हम्म, बीए इकोनॉमिक्स, पीजीडीआईबीओ, बीएससी जी, पीजीडीओएम, ये 4 कोर्सेज के लिए अप्लाई करना शुरू किया था। 4 हम्म। बार आपने किया था, तो ऐसे 2-3 रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। अगर आपको आई कार्ड अच्छा, मिल गया है इसका मतलब आपका एडमिशन कंफर्म है। कंफर्म्ड है, मतलब मुझे फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, फॉलो अप की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। हाँ। वो पोर्टल जो 2 ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ, दोनों पे आप मेल करिए, एक सी से एस आपको एक आर सी रिप्लाई। एट, एक मिनट में लिख के लेती हूँ। आप लिख लीजिए और इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक अच्छा, है। CSRC@igno हाँ, डॉट AC अब आप डॉट। बाद में लिख लीजिए मैडम, आपका क्वेरी हो गया। हाँ, नहीं है ठीक क्वेरी, है। नहीं है। ठीक है। हम्म, हम्म, हेलो। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। देन नेक्स्ट इज आकाश घूगे। सर मैं दीपक आकाश घूगे, आकाश घूगे। ठीक है। हेलो। अवधूत, अवधूत, सर शुड आई से समथिंग आप अपना चैट बॉक्स में नाम डाल दीजिए सर, हम आपको बुला लेंगे। हेलो। अवधूत। हेलो। Shashank sir, this is Avdut here. Shashank हाँ sir, बोलिए, बोलिए बोलिए सर। first of all, I appreciate your patience for handling all of us. My doubt, I have 3 doubts. First is, actually, I have paid the fees. Still, I have got the message that your application form is not yet completed. My fees is also completed. ठीक है। I have paid the हाँ। fee. और Second is, what can I do for this first doubt? ठीक है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताइए। 8850 हाँ 49 हाँ 1403. ठीक है। I दूसरा have got डाउट क्या है full आपका? number. ओके, नाउ योर सेकंड डाउट इज। Second doubt is, as it was mentioned in the education form that, sorry, in the admission form
that you have to fill the name as per your educational document. So I had filled as per my educational document, but my name is changed. So I have also attached the gadget. But when I have downloaded the form, actually it has come with the old name. Yes, I can see that. Okay. And third doubt? And third is I come under SC/ST category. So still the fees option had came, so I had paid the fees. It is BSc categories. Do you wish to avail gender employment? Category. Do you wish to? Hello, hello. Hello. Okay, well, it should have not. First thing, sir, your application is under process. It Yes. is. It has not yet been confirmed. I think you have paid the fees on 15th November only. Yes. So that is why it is under process. Second thing, आपने नाम तो पुराना डाल लिया है. That you should not have done. हाँ, What but you can actually do, वहाँ you पे clear cut mention था sir कि yes, educational yes, document yes, थी yes. sir. Okay. That is what we were even discussing during the presentation Yes, also. yes. But What you actually can I have do, already taken na. you now itself you send one email to rcmumbai@ignu.ac.in. Okay. And what should I So mention I in will that? just no, you mention your control number and you Yes. have paid the fees. You as per you have gadget notification for new name, but Yes. still you have written your old name. So Okay. that mail we can put up to our regional director, sir. And once he approves, if sir approves, then from regional center only we can edit the form. Otherwise, we will forward it to the headquarters. So Okay. whatever we can do, we will definitely do. First Okay. thing, your admission is already confirmed. It will get confirmed. There is no issue. I see. And about the third doubt? The third is about, I think, category में you got. See, you have applied for MA Psychology. Yes. So master degree में there is no exemption for SC/ST candidates. Okay, okay, no issue. And There are only one few more thing. programs. Yeah, okay. One more thing. I guess within 20-25 days, I will get the confirmation of admission. No, before that only you will get. No need Okay. to After that, it will be totally means through online only. Means through app only. I have to study, na? Yes, yes. Thanks a lot, Seshan. Thanks a lot. Okay. Next is Shweta Singh. Yes, sir. Ah. Good afternoon. Madam. I want to know what is the status of B.Ed admissions, because I have been trying from last, I think, July, but I didn't get any of the notification of that. And once I have emailed, and then I got a link, and that is invalid. Okay. So you have So- query for B.Ed admission, B.Ed, Bachelor of Yes. Education. Yes. See, madam, the thing is, the university gives admission for a B.Ed program only once in a year. That Okay. is in the January session. That is now the next should be for January 2021. The procedure is that you have to apply for the entrance examination. If you fulfill the eligibility is you should have D.Ed, that is Diploma in Education in regular mode. You should be an in-service teacher and you should have your graduation with 50%. If you fulfill Any this of criteria, one. Any no, all of of one? three, all three. All Okay. three should be completed. If you complete all three, then you can apply for entrance examination. And once you qualify, merit will be prepared, counseling will be done, and if you get your name in the merit, then only you will be given admission for B.Ed program. The thing is about notification. The dates for notification are never fixed, and during this COVID times, we cannot expect the dates to be fixed. Generally, the examinations for B.Ed entrance used to take place in the month of September or October. But now it is November and still there is no notification for the admission. So exact date for entrance examination we also cannot tell. Only thing you have to keep on visiting the website for updates. That is what we can do. Okay, sir, but I have not read any of the thing like this कि D.Ed होना ही चाहिए. It was there. It was written कि आपका 50 जो आपका graduation है that should be there and you should be teaching somewhere. No, These are the two even- things
they mentioned, and there was nothing written about DED thing. See, if you visit our IGNOU का proper website and if you go through your मतलब B.Ed का prospectus by IGNOU, I think from last 2 years we have made D.Ed compulsory. Prior to that, it was not there. If I am correct, I might be wrong also in this case. But for last 2-3 years, D.Ed has been made compulsory in regular mode by NCTE, National Council for Technical Education. Just now, in this year only, I have been trying, and I read all the prospectus what you are saying about. No, I will give you the link in the chat. Anything of DED. Shashank, Miss Sweta. Yes. The eligibility criteria is very clear. Wherever you read, we are telling. I am telling as a regional director, you should have the certificate, regular certificate, done recognized by NCTE. Whatever it may be, whether it is the DED or any other recognized certificate issued by the NCTE, it is compulsory one now to take the B.Ed admission in the IGNOU. That is very clear. And other qualifications, 50% in the graduation, and you should be also in-service teacher. That is the minimum criteria. We conduct the entrance examination, and for that notification will be issued by the university. The notification also will be published in the newspapers as well as the upload in our IGNOU website. You can check our website frequently, ignou.ac.in. Once the university notify, then you can apply. Presently, there is no B.Ed program notification is available. Okay? Yes. Okay, sir. Sir, it is not possible for me to take admission only with the graduation and the working thing. No. Now it is not possible. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Yeah, okay, then good. Thank you, sir. Now next, Swapnil Gaikwad. हेलो सर. स्वप्निल गायकवाड़. सर मैंने मेरा नाम लिखा है. नहीं, श्वेता सिंह के बाद मैम स्वप्निल गायकवाड़ है. आपका नाम खुशहाली है. खुशहाली है मेरा नाम. स्वप्निल गायकवाड़. ठीक है स्वप्निल गायकवाड़ जी, यू हैव रिटन फॉर पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी. ऐसा कोर्स नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्रिमिनल जस्टिस है. उसके लिए अगर आपका ग्रेजुएशन है सिर्फ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. देन खुशहाली ढोलकिया. Now she came. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ सर, मैंने बीएससी जनरल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था. फीस भी भर दी है मैंने. और उसमें क्या हुआ था, मेरा कॉमर्स ग्रेजुएशन है, उसमें ऑप्शन भी था कॉमर्स ग्रेजुएशन का. तो उसने एप्लीकेशन ले ली थी और फी भी सबमिट हो गई है. लेकिन डिस्क्रिपेंसी आ रही है मेरे में और रिजेक्टेड बोला है मेरा एप्लीकेशन. तो आगे कैसे होगा, मेरा फी रिफंड होगा या मेरा कंफर्मेशन होगा? नहीं, अगर आप एक बार अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बोल दीजिए. मेरा कंट्रोल नंबर दे दूं? हाँ, कंट्रोल नंबर दे दीजिए. हाँ 20. एक सेकंड. बोलिए. हाँ 2020 3 बार 20. हाँ 53 हाँ 24 हाँ 67 हाँ. S. ठीक है, आपका इसमें डिस्क्रिपेंसी आई हुई है एप्लीकेशन में. डिस्क्रिपेंसी में बता रहा है. अच्छा, आपने बीएससी के लिए अप्लाई किया हुआ है? हाँ, बीएससी जनरल के लिए. देखिए, अगर आप बीएससी जनरल के लिए अप्लाई कर रही हैं तो 12th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री. लेकिन उसमें ऑप्शन में था कॉमर्स, इसलिए मैंने अप्लाई किया. मैंने रीड किया था होना चाहिए, लेकिन उसमें ऑप्शन था तो मैंने अप्लाई किया और मैंने फी भी पेड कर दी है. तो अब आगे क्या होगा? हाँ, बेसिकली क्या होता है, जब आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं, प्रोस्पेक्टस में तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है 10% वो सही है. सेकंड, लेकिन उसमें क्वालिफिकेशन पूछता है, तो क्वालिफिकेशन में वो ऑप्शन देता है, कॉमर्स, सब देता है, क्योंकि वो
सेम पोर्टल होता है सारे बैचलर हाँ डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। ठीक अभी है आप बीए के लिए अप्लाई करें तो भी उसको साइंस दिखेगा, कॉमर्स के लिए अप्लाई ठीक करें है तो भी उसको साइंस दिखेगा। ऐसा ठीक होता है। है अब डिस्क्रिपेंसी ठीक आई है है, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और हाँ आपसे फीस 200 रुपीज कट के बाकी फीस हाँ आपको वापस मिल जाएगा। हाँ कोई बात नहीं। और कब कब तक मिलेगा? एडमिशन कैंसिल हो जाएगा जल्दी ही, मेरे ख्याल में 5-6 दिनों में, और उसके बाद आपका पर एडमिशन। ये मेरा 1 1.5 महीने से चल रहा है ये, तो ठीक है, कैसे होगा? अब हम ही कैंसिल कर देंगे और फी रिफंड आपको 15-20 डेज के अंदर आ जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इज कैमिनी अर्नी। हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए। सर। हेलो। मैं मेरा बोलना अभी तो खत्म नहीं हुआ है सर। ये जो क्रिमिनल जस्टिस है उसके लिए बीए होने के बावजूद भी कर सकते हैं? देखिए एलिजिबिलिटी में बहुत साफ लिखा हुआ है एनी ग्रेजुएट। नहीं सर, उसमें लिखा हुआ है कि आपका एमएसडब्ल्यू होना चाहिए या आपको कुछ लीगल बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए मैं जहाँ एलिजिबिलिटी देख रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है एनी ग्रेजुएट स्लैश ग्रेजुएट्स इन लॉ स्लैश क्रिमिनोलॉजी स्लैश सोशल वर्क। तो एनी ग्रेजुएट्स में आप फिट बैठ रहे हैं ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, कितनी फीस है इसकी? फीस के लिए आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस देखना पड़ेगा। मुझे डाउट है कि ये आरसी मुंबई में ये प्रोग्राम है, मुझे नहीं लगता है। हमारे यहाँ ये तो प्रोग्राम कहाँ एक्टिव होगा? नहीं है। तो आपको मुंबई आप में जब नहीं है? अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो कहाँ पे है उसकी पूरी लिस्ट भी आपको इसमें मिल जाएगी। ओ, आरसी मुंबई में नहीं है? नहीं नहीं। ओ ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक चला कट करू. ओके कुठे कट करायचं असं बे? ठीक है, बोलिए आप नेक्स्ट स्टूडेंट। सर कामिनी, बोलिए। सर वही अपना अपलोड जो हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है ना, वो उसकी डिस्क्रिपेंसी हो रहा है, क्लैरिटी। सो आई जस्ट मैंने एक्चुअली द फीस इज पेड पर डिस्क्रिपेंसी है एंड द कोर्स इज हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड मतलब डॉक्यूमेंट 10th मैंने दिया है, एमएससी भी दिया है। नहीं सॉरी पर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। बस मुझे इतना ही सुनाई पड़ रहा है कि आपने हिंदुस्तानी म्यूजिक में अप्लाई किया है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं पर डिस्क्रिपेंसी आई है, आप ऐसा बोल रही हैं। Yes sir, and I have the number, the registration number है मेरे पास। But madam, as I told earlier also, your program is not active at RC Mumbai. Basically, you are a student of IGNOU, of course, but you are not a student of Regional Center Mumbai. That is why we do not have access to check your application. So how? In this case, you have to contact. Have you removed the discrepancy? No, the thing is, my one sir in RC Mumbai has even changed the password for me at his end, just for that to get cleared in July, because in July I applied, July 29th, and then it still didn't get through. And then you had one more session like this, I think in September or October, which I joined. But uske baad bhi means I think we were supposed to talk or something, but I have not talked to him, and now I'm trying it again because this sir in RC Mumbai is the one who changed the password for me so that I can reapply or do something or upload the document. Actually मेरे पास document है, मैंने send किया हुआ है mail पे, but it's not uploaded in that particular form, in that that site का जो upload तो होता है ना। आप अपलोड कर दीजिए ना, आपका पासवर्ड आपके पास है तो। It's not getting login, sir. It's not getting login. He has changed the password, still it's not getting logged in. He has changed, he has done something at his end. RC Mumbai, एक सर है जो हेल्पफुल है, तो उन्होंने किया था फोन पे बात करके, फिर भी नहीं हो रहा था। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। हाँ आई थिंक मैंने किया था शायद उस समय मैंने यही बोला था आपको कि मैं सिर्फ पासवर्ड चेंज में ही आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ हेल्प नहीं हो पाएगी। अगर आपको फिर से लॉगिन का इशू है तो एक बार फिर से पासवर्ड चेंज करके मैं लॉगिन करा सकता हूँ आपको। लेकिन अप्रूवल और स्टेटस क्या है वो फाइनल अथॉरिटी जो दिल्ली में है वही अप्रूव करेंगे। नो प्रॉब्लम, बट बिकॉज़ आई एम गेटिंग अ मेल फ्रॉम यू, मतलब आरसी मुंबई ना, कि देयर हैज बीन सम। वो आपने रजिस्टर किया होगा। आप सिर्फ एक काम कर लीजिए, आप फिर से अभी आरसी मुंबई पे एक मेल डाल दीजिए मोबाइल नंबर के साथ,
तो यहाँ Okay. हमारे ऑफिस से कांटेक्ट कर लेंगे आपको। Thanks a lot, sir. That's नेक्स्ट पूनम मौर्य। पूनम मौर्य। हेलो सर, आवाज आ हाँ रही है बोलिए। मेरी? हाँ हाँ बोलिए। सर, मैंने एडमिशन ले रही हूँ बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो मैंने फॉर्मेलिटीज तो कंप्लीट किया, सिर्फ फीस पेमेंट रिमेनिंग है। तो मुझे कुछ डाउट था रिगार्डिंग स्टडी सेंटर एंड एग्जाम सेंटर कि जैसा स्टडी सेंटर और एग्जाम सेंटर दोनों सेम होता है या डिफरेंट होता है? नहीं, देखिए स्टडी सेंटर जो होता है वो होता है जहां आपके सेशंस होंगे बेसिकली, और इस सिचुएशन में तो सेशंस भी हम ऑनलाइन ही कंडक्ट करा रहे हैं। आपके जो प्रैक्टिकल्स के भी कुछ होते हैं वो स्टडी सेंटर में होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर वो आपको चूज करना है एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त। सपोज आप वेस्टर्न साइड में रहती हैं मुंबई में ही, या आपको एग्जामिनेशन मान लीजिए एग्जाम जून में होता है, तो आपको एग्जामिनेशन दिल्ली में लिखना है या हैदराबाद में लिखना है या वाराणसी में लिखना है। तो जहां भी आपको एग्जाम लिखना है, एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपको एग्जाम सेंटर उस समय चूज करना है। जो भी एग्जाम सेंटर आप चूज करेंगी वहां आपको एग्जाम लिखने को मिलेगा। ओके, बिकॉज सर मेरा जो स्टडी सेंटर था वहाँ पे मुझे चूज करने का ऑप्शन नहीं आया था, बाय डिफॉल्ट एक ही सेंटर है इसके लिए। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आपको स्टडी सेंटर चूज करने के लिए इसलिए नहीं मिला क्योंकि स्टडी सेंटर एक ही है BLIS के लिए, वो सेवा सदन कॉलेज में है। प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन होगा या हाँ प्रैक्टिकल्स। हाँ जी हेलो। हाँ सर, मैं वो पूछ रही हूँ कि एग्जाम सेंटर। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ अभी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि एग्जाम सेंटर जो है वो मेरा पास में, मैं वेस्टर्न लाइन में रहती हूँ तो वहाँ पे ही आएगा ना, बिकॉज मुझे स्टडी सेंटर में कोई ऑप्शन नहीं आता सिलेक्शन का, डायरेक्ट हाँ सेवा आप सदन एग्जाम कॉलेज मुझे मतलब अलॉट कर दिया गया। वेस्टर्न मुंबई में जैसे इस सेशन में विले पार्ले में एक सेंटर है, मरोल नाका अंधेरी में एक सेंटर है, तो 2 सेंटर है वेस्टर्न मुंबई में, वहाँ आप चूज कर सकती हैं एग्जाम सेंटर के लिए। अच्छा ओके, तो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस वहाँ पे भी हो सकता है, मुझे हाँ सेवा मतलब सदन जाने की एग्जाम जरूरत? आप एग्जाम हाँ वहाँ लिख एग्जाम, सकती यस हैं, बाकी एग्जाम यस। सेशंस आपको सेवा सदन में ही अटेंड करने हैं। ओके, बट अभी तो प्रैक्टिकल्स, सिर्फ प्रैक्टिकल्स भी, वो भी एग्जाम ही काउंट करते हैं ना, जो कि मेरा यहाँ पे होगा, जो मेरे पास में जो मैं सिलेक्ट करूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो आपको सेंटर में ही जाके देना पड़ेगा, एक ओके, एक लाइक सेवा प्रैक्टिकल एग्जाम सदन। जो होता है। हाँ हाँ। ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट पराग खुमान। सर अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके मतलब लैब सेशंस भी है, तो सर वो इधर आना पड़ेगा अभी ये कोविड के सिचुएशन में, ऑनलाइन होगा कि सेंटर पे आना पड़ेगा सर? देखिए थियरी सेशंस तो सारे प्रोग्राम के ऑनलाइन हो गए हैं, प्रैक्टिकल सेशंस प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करता है। कुछ प्रोग्राम के लिए अप्रूवल आया है दैट वी कैन कंडक्ट इट ऑनलाइन, जिस प्रोग्राम में है उस प्रोग्राम में हम ऑनलाइन करेंगे, नहीं तो जैसे भी आएगा, क्योंकि सिचुएशन अभी यूनिवर्सिटी भी सिचुएशन देख रही है कि आगे क्या होगा, उस बेसिस पे डिसीजन लिए जाएंगे। आपका कौन सा प्रोग्राम है? हाँ आपका प्रोग्राम क्या है सर? चला एक्चुअली सर पीजीडी ना, ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है ना सर, उसमें भी मुझे एडमिशन लेना था 2 प्रोग्राम में, तो सर ऐसे ऑनलाइन करना पड़ेगा क्योंकि जो सेंटर है वो पुणे लिखा है, बट एक्चुअली वो कॉलेज है ना वो कोल्हापुर में है सर, तो मतलब जाना पड़ेगा क्या? हाँ, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के लिए सेंटर, रीजनल सेंटर पुणे ही है। स्टडी सेंटर जहां भी मिलेगा, प्रैक्टिकल जैसे भी होगा वैसे जाके आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन हुआ तो वेल एंड गुड, ऑफलाइन हुआ तो आपको वहां जाके करना पड़ेगा। और सर मतलब 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा साथ में कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं आप डिस्टेंस में। कर सकते हैं ना सर? कर लीजिए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज नितिन ठाकुर। नितिन ठाकुर। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ बोलिए सर। आई जस्ट नहीं, आपका प्रोविजनल नहीं, सॉरी आपका वॉइस कट हो रहा है, सॉरी आप एक बार फिर से रिपीट करिए प्लीज।
ओके सर, मैंने मेरा MAPC के लिए साइकोलॉजी के लिए MA इन साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया है सर। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हेलो बोलिए। सर या तो मुझे नेक्स्ट दिन 16 तारीख को मुझे ईमेल आ गया है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो गया है एंड मुझे मेरा कंट्रोल नंबर मिल गया है। बट सर मुझे एक और भी ईमेल आया है कि उसमें कि आई एम नॉट फॉलोइंग अप या ऐसे कुछ तो भी लिखा हुआ है उसमें। तो मतलब आई वांट टू नो सर, कैन यू जस्ट टेल मी मेरा स्टेटस क्या है, इफ यू कैन जस्ट कंट्रोल नंबर है आपके पास आपका? 2006 नहीं, ये एनरोलमेंट नंबर बोल रहे हैं आप। ठीक है, खैर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बोलिए। 96 540 हाँ 45 हाँ 490। ठीक है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है MA साइकोलॉजी के लिए। ओके। आपने 2 बार अप्लाई किया था, इसके ओके लिए आपको ये ईमेल गया होगा। यस यस यस। पहले सर एक बात मैं बता देता हूँ सर, मुझे बहुत दिक्कत हुई अपलोड करने में, क्योंकि जो फाइल साइज जो 10 KB और 100 KB के बीच में करने के लिए, सो वेरी डिफिकल्ट था। एनीवे आई मैनेज। थैंक यू सर। अब तो हो गया, आपका एडमिशन कंफर्म है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिख रही है। ओके, तो ये मेरा रोल नंबर हो गया ना सर फिर? ये कंट्रोल नंबर, वो कंट्रोल नंबर। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। देन ऋतिक कांबले। ऋतिक कांबले। ठीक है, वो नहीं है। मुकेश कुमार। जी सर, नमस्ते सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, बोलिए। जो मेरा डिप्लोमा इन डिटेलिंग है कोर्स है, इसका सेंटर है मुंबई, दिल्ली और ऐसा कुछ है। वो उड़ीसा के नहीं है, जो एग्जाम देने के लिए ना वहाँ पर जाके देना ही पड़ेगा। आपका डिप्लोमा इन रिटेलिंग प्रोग्राम है? हाँ। आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है ना? नहीं लिया है। हाँ, तो मैं आपको एग्जाम प्रोसेस तो किया आप था कहीं उस भी, सेंटर। आप एग्जामिनेशन तो कहीं भी लिख सकते हैं ना, पहले आप एडमिशन तो ले लीजिए पहले। नहीं, वो तो उसमें सेंटर तो लिखा है ना, जो सेंटर है, जो सेंटर 5 सेंटर आता है उसमें उड़ीसा नहीं है, वो टोटली मुंबई, दिल्ली और ऐसा कुछ बाहर आउट ऑफ स्टेट है उड़ीसा का। डिप्लोमा इन रिटेलिंग DIR। हाँ हाँ, DIR। हाँ, तो इसका मतलब सर वो एग्जाम कहाँ उड़ीसा पर? में वो उसका मतलब वो जो प्रोग्राम है वो एक्टिव नहीं होगा उड़ीसा के किसी सेंटर में। खैर आप एडमिशन लेके, अगर आपको करना ही है तो आप एडमिशन किसी भी सेंटर में ले सकते हैं जो भी अवेलेबल है। एग्जामिनेशन आप उड़ीसा में लिख सकते हैं। वो तो सेंटर चूज किया मुंबई, तो जो स्टडी सेंटर है ना वो मुंबई चूज किया, तो एग्जाम कहाँ पर देंगे? एग्जामिनेशन आप उड़ीसा में लिख सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म उस समय भरना पड़ेगा, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देने वाली है कि डिप्लोमा इन रिटेलिंग में आपको एक इंटर्नशिप भी होता है। हाँ, वो इंटर्नशिप इंटर्नशिप होता है। का बनाने के बाद उसका वाइवा होता है। वो वाइवा देने के लिए आपको मुंबई, दिल्ली या जो भी सेंटर आप चूज करेंगे वहां आना पड़ेगा, वो उड़ीसा में नहीं होगा। वो वहाँ पर आना पड़ेगा, उसका डेट रहेगा। उसका डेट रहेगा वहाँ वो पर आपको, हाँ यहाँ आके देना पड़ेगा। इंटर्नशिप कहाँ पर करेंगे? इंटर्नशिप तो आप किसी भी रिटेलिंग कंपनी में कर सकते हैं, उड़ीसा में भी कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका वाइवा देने आपको मुंबई आना पड़ेगा अगर आप मुंबई में एडमिशन लेते हैं तो। वाइवा देने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है। और एक कोर्स है जो मैं उसका जुलाई सेक्शन और दिसंबर सेक्शन, वो कोर्स का जो डिप्लोमा मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उसमें जुलाई सेक्शन में और ये मतलब दिसंबर सेक्शन में दोनों पार्ट हो गया है। उसका बुक कोर्स का थोड़ा बता सकते हैं, वो कहाँ का क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? कौन सा प्रोग्राम है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मार्केटिंग मैनेजमेंट।
मार्केटिंग हेलो मैनेजमेंट सर, भी हेलो। मटेरियल जो है आप हाँ हाँ सर ये बोलिए। कर सकते हैं। अगर उसका मटेरियल जो भी है, हेलो। अगर आपको सर मटेरियल नहीं मिल रहा है तो पहले आप अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कर नहीं सकते सर, हैं, अगर आप ई ज्ञान उस कोर्स पर में मटेरियल वेबसाइट, नहीं मिला है, मैं ऑलरेडी डीडी कर दिया हूँ। ठीक है, ठीक है, अब उन मैं लोग आपको कोर्स एडमिशन नहीं कर पा रहे, डीडी जब कर तक दिया हूँ उसको। मटेरियल जब तक आपको मटेरियल नहीं मिलता है तब तक के लिए मैंने एक लिंक दे दी है, आप उस लिंक पे जाके अपने मटेरियल ढूंढ सकते हैं। चैट बॉक्स में डाल दिया है। नहीं मटेरियल नहीं है सर, मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ है। मैं डीडी कर चुका हूँ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, हाँ तो कोर्स सब्जेक्ट कोर्स है ना, वो सब्जेक्ट MS1 है, MS6 है, ऐसा कुछ है। हाँ वो हाँ कोर्स का उन लोग नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। डिप्लोमा 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट लेने के लिए और एक सब्जेक्ट के लिए दिक्कत हो रहा है। कौन सा उसका ये उसका प्रॉब्लम होगा? देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट का एडमिशन डेट अब खत्म हो गया है, तो अब आपको नेक्स्ट साइकिल में अप्लाई करना नो, पड़ेगा उसके डायरेक्ट लिए। एंट्री है ना, डायरेक्ट एंट्री है ना वो डायरेक्ट मार्केटिंग एंट्री मैनेजमेंट वो का। मुझे पता है, लेकिन उसका डेट अब खत्म हो गया है सर, उसके एडमिशन का। उसका एडमिशन का नहीं डेट वो खत्म हो ये गया, वो 1 ईयर नेक्स्ट सेशन कोर्स में है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 ईयर कोर्स है, पर वो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। इसके लिए उसका एडमिशन डेट अब खत्म हो गया है, अब आपको नेक्स्ट साइकिल में अप्लाई करना है उसके लिए। वो तो मैं अब आप कर उसको चुका हूँ, अप्लाई, कभी से डीडी कर चुका हूँ, मैं कभी आप से डीडी डीडी कर कर चुका लिया, हूँ। आपने डीडी सबमिट किया है क्या? हाँ हाँ कर दिया है, कभी से कहाँ कर दिया किया है? वो। कहाँ किया है वो सबमिट? उड़ीसा में ही है, उड़ीसा में ही है। हाँ तो उड़ीसा में ही कांटेक्ट करिए ना फिर, जहाँ जब डीडी सबमिट किया नहीं है वहाँ वो कांटेक्ट ठीक है, करिए। वो पूछ किया है, वो तो रिटेल का कोर्स एडमिशन करना था। वो जैसे नहीं हो पाया, सेंटर का प्रॉब्लम मेरे को पता नहीं चला, मैं एग्जाम वहाँ पर दे सकती हूँ, तो इसलिए नहीं पता चला उड़ीसा में एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इसलिए मैं पीजी डिप्लोमा मार्केटिंग मैनेजमेंट चेंज किया। ठीक है, ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। आप एक बार चाहिए तो रीजनल सेंटर वहाँ पे विजिट नहीं कर होगा, लीजिए आपका नहीं हो विजिट में। सकते है तो ये अभी ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब जो रिटेलिंग का, मतलब एग्जाम वहाँ हाँ पर उड़ीसा में होगा और वो इंटर्नशिप भाईवा के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। मोहन रमन, नेक्स्ट मोहन रमन। हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ बोलिए। हाँ, शशांक जी, देखिए मैंने एडमिशन MAPC प्रोग्राम के लिए लिया था। ओके, एंड मैंने पूरा पेमेंट भी कर दिया है, फी पेमेंट आई हैव मेड द कंप्लीट फी पेमेंट। तो मुझे फिर भी ये मेल आया है कि लाइक योर फॉर्म स्टिल इनकम्प्लीट करके, तो अभी क्या कैसे करें? आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बोलिए। 93246 25606। 25606। हाँ, कंट्रोल नंबर दूं? नहीं, रुक जाइए। ठीक है, आपका एक एप्लीकेशन इस नंबर से दिख रहा है। आपने हाँ, पेमेंट भी किया हुआ MAPC। है, सॉफ्ट कॉपी ऑफ हाँ करके सर। आपका पेमेंट भी दिख रहा है। आपने पेमेंट यस। अभी किया हुआ है 14 नवंबर को, तो एक हफ्ते वेट कर लीजिए, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा आपका। नहीं, बट कंफर्म हो जाएगा ना? हाँ हाँ, कंफर्म हो जाएगा। तो नहीं, अगर या तो कुछ ऐसा फॉलोअप करना के लिए कुछ लिंक है नहीं, क्या? फॉलोअप ये नहीं करना है, आपका एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा जल्दी ही। एप्लीकेशन हो जाएगा सर। तो एंड हाँ, मे बी आज ही मुझे हो लाइक, जाएगा। नहीं तो मुझे ईमेल मिलेगा? आई विल गेट ए मेल फ्रॉम इग्नू और समथिंग? जनरली कंफर्मेशन का ईमेल जाता है, कई केसेस में नहीं जा पाता है, तो whatever user ID and password you have created, use that user ओके। ID password, मतलब हाँ, keep on login into your account 5 days में once, 6 days में once, you will get the updates automatically. बट no, on which website? On RC Mumbai website or the नहीं, IGNOU सेम website? जहाँ पे आपने अप्लाई किया हाँ, ignuadmission.samarth.edu.in, वहाँ पे अपनी यूजर राइट, आईडी उसी में। पासवर्ड कैसे बनाया है वहीं जाके चेक करना है। ठीक है सर। ठीक, हो गया आपका? हेलो। हाँ, हो गया आपका क्वेरी? हेलो। हेलो। हाँ, आपका हो गया क्वेरी अभी? भेजा ना ईमेल? हाँ ठीक है, सर, नेक्स्ट। हेलो।
हाँ, आपका हो गया ना अभी मोहन जी? हेलो अब हेलो आप हेलो हेलो हाँ नहीं बोलिए नहीं बोलिए नहीं नहीं मेरा और एक क्वेरी है। बोलिए। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, ये अभी एमएपीसी साइकोलॉजी प्रोग्राम के लिए ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल इट बी ऑनलाइन और ऑफलाइन? सेंटर में जाके आके देना पड़ेगा या ऑनलाइन करने होएगा? आपको अप्रूवल कुछ मिला है क्या इसका? प्रैक्टिकल सेशंस एमएपीसी के भी डिसाइड नहीं हुए हैं। अच्छा, ओके सर। एंड हाउ विल आई कम टू नो अबाउट माय स्टडी सेंटर? मेरा स्टडी सेंटर कौन सा है वो, हाउ विल आई कम टू सेवा नो? सदन कॉलेज है, सेवा सदन कॉलेज उल्लासनगर। उल्लासनगर, वहीं पे मेरा लाइक देयर ओनली आई विल हैव टू कम फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम ना, अगर होगा तो स्टडी सेंटर? यस ओके। एंड मुझे असाइनमेंट्स भी वहीं पे सबमिट करना है ना? असाइनमेंट्स भी वहीं पे सबमिट होंगे, नहीं तो ऑनलाइन सबमिट होंगे, आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, जैसे भी होगा आपको उस टाइम मालूम पड़ेगा। नहीं, कैन वी सबमिट इट ऑनलाइन आल्सो असाइनमेंट्स? This time we have, for last 2 sessions we are taking online. Now what the Okay. situation will be in the month of June we do not know, so it depends. Okay. Whatever the mode is adopted, students will be informed. ओके सर, क्योंकि लाइक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट सिलेबस लाइक असाइनमेंट फॉर फर्स्ट ईयर, उसमें उन्होंने आपने डेडलाइन दिया है फॉर जुलाई 2020 एडमिशन, द डेडलाइन इज 31 मार्च। तो उसके लिए मैं पूछ रहा था, तो बिकॉज ऐसा नहीं हो कि देन बाद में आप बोलेंगे कि ये 31 मार्च हो गया है तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर असाइनमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए ना? what I will tell, वैसे भी assignments are to be hand written, start writing the assignments, contact us through email in the month of February, that's all. Okay. And we can submit it by post at that time, whatever is the situation at that time you will intimate us accordingly. ठीक है sir. Okay, fine, thank you sir. Then Arwa Zakuddin. Yes sir. सर फॉर्म फिल करने थे, उसके अंदर एक था एनएडी की डिटेल्स भरनी थी। किसकी डिटेल्स? एनएडी। हाँ ठीक है सर, so what is that? See, that particular field is not compulsory, so even if you do not fill that field, there is no issue, you can skip that field. Okay, but what is it like? Basically it is a number given on your degree certificate, basically it is. Okay. And the mode of study, so I was just asking कि for what all the things we have to be present at the center, like for the practicals and viva, that's all, or for the sessions, for the class sessions, and also what is your program? MAPC psychology. So theory sessions will be online, practical sessions will be decided later on. Whenever practical sessions or any other session is conducted, for that only you have to visit the study center. Okay. And one last thing, sir. In the first page of the form, there was some thing for scholarship also. It was asking you if you are receiving any scholarship. It is not to give. It was just asking if you are receiving any scholarship. Okay. Thank you so much, sir. Then next is Ganesh Kurle. I think इनका हो गया है. गणेश कुरले आई थिंक हो गया है, तो हम आगे जाएंगे। अभिषेक त्रिपाठी। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए। सर मैं बीबीए आईआर के लिए कर रहा हूँ, मतलब बीबीए इन डिटेलिंग के प्रोग्राम के एडमिशन लेना चाहता था। हाँ। फीस फिलहाल 9000 है, ठीक है ना सर? मैं इतना पूछना चाह रहा था कि वो इंस्टॉलमेंट्स में भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, इंस्टॉलमेंट्स अगर भरना हो तो? नहीं सर, वो 9000 पूरे साल का फीस है, वो इंस्टॉलमेंट में नहीं देना होता है, वो एक साथ ही देना होता है। मतलब एक साथ ही भर सकते हैं क्या? हाँ 9000 एक साथ आपको पर ईयर भरना पड़ेगा। ओके सर, मतलब इंस्टॉलमेंट सर अगर इंस्टॉलमेंट में भरना चाहे तो? नहीं, वैसा फैसिलिटी नहीं है। नहीं है क्या फैसिलिटी? नहीं। थैंक यू सर। दीपक कुमार। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। दीपक जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और पेमेंट भी कर दिया है सक्सेसफुली, पर सर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और पेमेंट भी कर दिया है, पर कंफर्मेशन नहीं आया है अभी तक।
कि आपका एडमिशन हो कंट्रोल गया है नंबर ऐसा या कुछ। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बता दीजिए, कंट्रोल नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ओके सर, कंट्रोल नंबर बता रहा हूँ। 2020। हाँ हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। सर, 3 बार 20 है। हाँ पता है, आगे बोलिए। 20 20 20। हाँ 70 78 01 हाँ S। हाँ ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ आपका एप्लीकेशन। मेरे ख्याल में थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से वो स्लो हो गया है। अ, आपका एप्लीकेशन दीपक कुमार बेचन। हाँ जी, आपने तो अभी 15 नवंबर को अप्लाई किया हुआ है दीपक जी। आपने दीपक कुमार जी 15 नवंबर को आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपका एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में है। आप वेट कर लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। दीपक कुमार जी, आपको आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। खैर, आपका एप्लीकेशन आपने 15 नवंबर को फीस पे किया है, तो आपका एडमिशन भी कंफर्म हो जाएगा बहुत जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर। आप वेट कर लीजिए फिर थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट इज अक्सा सोंदे। हाँ जी, हेलो बोलिए बोलिए। हेलो सर, मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश एमए के लिए अप्लाई किया इंग्लिश में। हम्म। तो मेरा एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल आउट कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स में मैंने रिजल्ट्स और ग्रेजुएशन के मार्कशीट वगैरह अपलोड कर दिए, हाँ लेकिन मेरा एडमिशन कंफर्म वाला कोई ईमेल नहीं आया, और ईमेल आया कि कुछ मिस्टेक्स है, इसीलिए मैंने ये ठीक है, आप क्वेश्चन। आपके पास आपका कंट्रोल नंबर है या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी बताना चाहें। जी 20 3 टाइम्स हाँ 714 हाँ 893S। अक्सा सोंदे। आपने अपना फी पे किया है 14 नवंबर को, तो वो अभी जी प्रोसेस जी में है। कोई इशू नहीं है, वो 1 वीक के अंदर ही अप्रूव हो जाएगा। ठीक सर। और डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ रिजल्ट ही अपलोड करने थे ना, और कोई डॉक्यूमेंट हाँ, अपलोड नहीं करना आपने था? सब अप्रूव किया है, अपलोड किया है। मेरे ख्याल में सबसे इनका सिर्फ नंबर या कंट्रोल नंबर ले लीजिए, चेक कर लो। आपने सब यहाँ पे साफ दिख रहा है, सही किया हुआ है। प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी भी नहीं आया है अभी तक, अभी प्रोसेस में है वो। जी 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 ठीक। बस इतना ही पूछना था, मतलब हो जाएगा ना ठीक 1 वीक में और हाँ कंफर्म? हाँ ठीक, हाँ हाँ। थैंक यू। नेक्स्ट आकाश घुगे। हाँ, आवाज आ रही है। आकाश, हाँ बोलिए। मैंने एडमिशन एमएसडब्ल्यू को लेना था, लेकिन गलती से मैंने बीए को लिया एडमिशन। तो मैंने आइग्नू सेंटर में मुलुंड में गया, तो एडमिशन कैंसिल के लिए किया था, कैंसिल किया, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया मेरे को। हाँ हाँ, आपने कैंसिलेशन अप्लाई किया था ना मेरे ख्याल में। 1 सेकेंड। हाँ हाँ। आपका नंबर नंबर रजिस्टर्ड नंबर बता दीजिए वो एमएसडब्ल्यू के लिए। 8286 हाँ 865930 828686 8286। फिर से 86 हाँ 5930। अच्छा,
आपका एक कैंसलेशन वाला जो है वो हमने कैंसिल कर दिया था, और वो अप्रूव भी हो गया है कैंसलेशन के लिए। हाँ। फी रिफंड भी आपको जल्दी आ जाएगा। बीए वाला था ना आपका 2900। हाँ हाँ हाँ, तो 2700 रुपीज आपको रिफंड आ जाएगा जल्दी ही। अभी हमने ये कैंसिल कब किया है, हाल में ही किया है। कैंसिल किया हमने 10 तो कभी नवंबर होगा? को। 10 नवंबर को कैंसिल किया, हाँ। तो एटलीस्ट 10-14 डेज तो लगता है रिफंड आने के लिए। ओके, और सेकेंड एडमिशन जो MSW का है वो कभी तक कंफर्म होएगा? आपने अगर अप्लाई किया है, कब किया अप्लाई? 14th को किया है, ये वाले यही नंबर है रजिस्टर्ड नंबर यही है, उसका नंबर भी यही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ पेड है। अगर 14th को किया है तो 1 वीक लगेगा उसको कंफर्म होने में, 1 वीक या 10 डेज मान लीजिए। इसका रिफंड कभी आएगा? इसका रिफंड मैंने बोला ना 10-14 डेज वेट करिए। ठीक है। नेक्स्ट इज थिंक अमन साहनी। हेलो सर। हाँ जी सर रिसेंटली मैंने अभी BCA के लिए अप्लाई किया था सर, और करंटली आई एम डूइंग BCom फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। सो सेकंड डिग्री वैलिड रहेगा कि नहीं सर? आप मुंबई यूनिवर्सिटी से रेगुलर कर रहे हैं या डिस्टेंस में? सर रेगुलर। हाँ तो कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं। बट सर वो UGC का नोटिस नहीं आया था सर, सो इसलिए डाउट था कि लीगल बैकग्राउंड पे वैलिड रहेगा कि या नहीं रहेगा। नहीं, यूजीसी का नोटिस मार्च या अप्रैल में नया आया है इसी साल कि 2 डिग्री कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, 1 फ्रॉम डिस्टेंस 1 फ्रॉम लेक्चर। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। देन बिस्त गोविंद। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। सर वही कंफर्मेशन फर्स्ट जो अभी अमन ने पूछा। सर यूजीसी की वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं दिखा रहा है ड्यूअल डिग्री के लिए, तो कंफर्म है क्या वो? क्योंकि वो मतलब बहुत से जगह पे ऐसे बता रहा है कि ये अभी नोटिस जब तक नहीं आता है तब तक वैलिड नहीं रहेगा। देखिए हमें जहाँ तक जानकारी मिली थी यूजीसी ने अलाउ कर दिया है। उन्होंने हाँ, डेट हाँ। भी बताया था कि इस डेट से अलाउ कर रहे हैं। अच्छा। खैर ये हम एक बार और चेक कर लेंगे अपने एंड पे, और हम हेडक्वार्टर को भी इन्फॉर्म कर देंगे। पर आप कर अच्छा। सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने न्यूज़पेपर में भी आ चुके हैं कई सारे, तो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट्स भी आ चुके हैं। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एक बार और हम कंफर्म कर लेंगे अपने एंड पे। अच्छा सर, मेरी 2 क्वेरी थी अपार्ट फ्रॉम दिस। एक सर, मेरी बहन को MSc न्यूट्रिशन करना है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेक्स, और उनका क्वालिफिकेशन BVoc, उन्होंने अभी BVoc किया है, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज फूड टेक्नोलॉजी में ही SNDT से, मगर वहाँ पे हर जगह पे BSc मांग रहा है, तो वो एक एलिजिबल है क्या मतलब? देखिए अगर उन्होंने जो वोकेशनल स्टडीज किया है, हाँ। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने, उनका बैकग्राउंड था फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड था। हाँ। हाँ तो अगर BSc के बिना फूड एंड न्यूट्रिशन का रहता है, तो हाँ। अगर सपोज उनका बैचलर्स में फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड ही डिग्री है, तो उनको एक CFN या CNCC अप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ वो कर सकती है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट कोर्स आप बोल रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन को डिप्लोमा होना चाहिए? नहीं, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो एलिजिबल हो जाएंगे मतलब अगर हाँ, वो ऑटोमेटिकली उनको पूछेगा। मगर वो BVoc बता रहा है सर, एलिजिबिलिटी का इशू तो नहीं आएगा ना कि ये उधर पे BSc बता रहा है और ये इनका डिग्री अभी BVoc रीसेंट है ना, तो देखिए कई बार क्या होता है, ये सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, इसमें हमें भी कई बार ट्राई करना पड़ता है। फर्स्ट चीज ये है क्योंकि उनका बैकग्राउंड प्योरली आपने बोला फूड एंड न्यूट्रिशन से है, तो उनको CFN या CNCC सर्टिफिकेट एक साथ करके उनको अप्रूव कर देते हैं। आप उनको अप्लाई करने के बोल सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर उनका अप्रूव नहीं होगा, यही होगा, कैंसिल कर देंगे वो। अगर इन केस कैंसिल भी करते हैं तो उनकी जितनी भी फीस है उसमें 200 रुपए कट के बाकी सारी फीस उनको वापस मिल जाएगी। तो ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा इन पैरेलल की कैसे क्या है? साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा उनको। अप्लाई करने के लिए ऑटोमेटिकली खुद ही बोलेंगे वो। अच्छा, ठीक है सर। और सर दूसरा था कि MCA का तो ये सेशन एक्सपायर हो गया है,
मैंने एक ईमेल भी डाला था एमसीए डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं हो सकता है, सेमेस्टर बेस सब खत्म हो गया है। तो एमसीए का जो न्यू क्वालिफिकेशन है कि एनी ग्रेजुएट डिग्री और 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन में मैथ्स लेना है और पीजीडीएम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है। तो ये जो पीजीडीएम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करके अप्लाई करना है कि ये साइमल्टेनियसली, जैसे आपने बताया सीएफएन नहीं, ये आप नया नया क्वालिफिकेशन कहाँ से बात कर रहे हैं? मुझे उसका एमसीए मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सर, मैंने हाँ नहीं, जो वो मैं अभी हमारे यहाँ अभी जो क्वालिफिकेशन है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका हाँ ग्रेजुएशन या 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए। इन केस आपका ग्रेजुएशन या 12th में मैथमेटिक्स नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स, तो आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 1400 रुपीज पे करके फर्स्ट सेमेस्टर में लेना पड़ेगा, एमसीएस 12 बस। तो हाँ जी। ओवरऑल अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो यू कैन परस्यू एमसीए फ्रॉम इग्नू। नहीं सर, वो सेशन तो एक्सपायर्ड हो गया ना, जुलाई का जो भी सेमेस्टर बेस है एमसीए देखिए सेमेस्टर आप बेस ही है। हाँ, तो अभी नया एडमिशन के भी लिए क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगा। नहीं नहीं, मैंने एमसीए की जो हेड है उनको ईमेल डाला था, तो उन्होंने रिवर्ट किया। देखिए हमें पता हाँ है सिलेबस चेंज होने वाला है। हाँ जी, मोस्टली एमसीए प्रोग्राम जो है वो 3 साल की जगह अब 2 साल का होने वाला हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है, लेकिन अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मैं आपको कोई एलिजिबिलिटी कैसे बता दूं? नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, जनवरी नहीं तक आ नहीं, जाएगा। उन्होंने उन्होंने मुझे एलिजिबिलिटी भेजा कि नए सेशन में ऐसी एलिजिबिलिटी है, तो मेरा ठीक है, कंफ्यूजन था कि उसके अंदर एलिजिबिलिटी में ना कंप्लीटेड बता रहा था पीजीडी देखिए डीसीए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी हाँ वो जी, एलिजिबिलिटी हमारे पास नहीं आई है, तो मैंने वो एलिजिबिलिटी पढ़ी नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता। तो वेट कर अच्छा लीजिए, या फिर आप सर को ही रिवर्ट कर दीजिए, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को ही, सर आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अच्छा अच्छा। सर सर श्योर है ना, मतलब ये मेरी बहन ये, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है बीएससी बीएससी, और देखिए फिर हमने से आप उन्हीं टर्म्स पे और वर्ड्स पे जाना चाहते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, ये सब टेक्निकल चीजें होती हैं, कई बार उनका बैकग्राउंड न्यूट्रिशन में है। अप्लाई करने को बोलिए, अगर डाउट है तो ना अप्लाई करें, लेकिन अगर अप्लाई करेंगी और कैंसिल होगा तो फिर रिफंड उनको मिल जाएगा, उसमें कोई हाँ बड़ा जी, इशू नहीं है। अच्छा जी। इधर पे पीजीडीएम की जरूरत नहीं है ना, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की जरूरत नहीं ना, सर्टिफिकेशन कोर्स से भी चल जाएगा ना? हाँ अच्छा सर। और सर क्योंकि मैंने यूजीसी की वेबसाइट पे भी चेक किया है, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, मतलब नहीं आई है, यूट्यूब। हमें भी पता है, हमें भी हाँ पता है, हमने भी यूजीसी वेबसाइट चेक की है। कहीं भी ये नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज नहीं किया है हाँ नोटिस जी, बोर्ड में, हाँ लेकिन जी। हमें ऐसा बताया गया था हेडक्वार्टर से दैट वी कैन कंटिन्यू, दैट इज व्हाई वी आर कंटिन्यूइंग। अभी हेडक्वार्टर में हमारे सर, ठीक है, वो अभी इतना डिटेल में नहीं आते हैं, पर हमें बताया गया था, आगे हम देखेंगे क्या होता है। अच्छा, क्योंकि मैं करंटली एक डिग्री ले रहा हूँ, तो मुझे परस्यू करना था, तो वही प्रॉब्लम आ रहा है कि लीगली कल को मतलब वैलिड नहीं रहेगा, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता बिल्कुल है बिल्कुल। रेट्रोस्पेक्टिव कुछ नहीं हो सकता है ना, प्रोस्पेक्टिव ही होता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव कुछ नहीं होएगा, तो उसमें पता चला फीस भी गई और मेहनत भी गया। तो हाँ हाँ ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, आपको नोटिस आ गया तो मतलब कुछ न कुछ प्रोसेस में होगा ही। थैंक यू सर हाँ हाँ सॉल्व करने के ठीक लिए, है। थैंक यू। Then next is Tagdis, S Tagdis, हाय सर, गुड आफ्टरनून। बोलिए। सर मेरी दो क्वेरीज हैं। पहली ये कि जिस ईमेल से मुझे ये लिंक मिला है ना, उसमें लिखा था कि आपने अपना फॉर्म कंप्लीशन अभी सबमिट करके कंप्लीट नहीं किया है, बट सर मुझे एनरोलमेंट नंबर भी मिल गया है, मेरी फ़ीस भी पेड है, तो ये क्यों हुआ? और दूसरा ये कि मेरा प्रोग्राम कोड जो है वो डाइटेटिक्स इन फूड सर्विस मैनेजमेंट है, तो हम लोग की थ्योरी और प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, और हम लोग सॉफ्ट हार्ड कॉपी कब मिलेगी हम लोग को? बिकॉज हमने ईमेल किया था, तो स्टडी सेंटर से मैसेज आया था कि 15 नवंबर तक ये सब वाइंड अप हो जाएगा, फिर आप लोग आ सकते हैं कलेक्ट करने, बट अभी ये फिर से एक्सटेंड हो गया है सर, वाइंड अप नहीं हो रहा है, तो कब तक वेट करेंगे? जून में एग्जाम भी है, काइंडली वेरीफाई। पहली चीज, आपका मैंने जैसे शुरू में ही, एकदम शुरू में हमने ये डिस्कशन किया था कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एनरोलमेंट नंबर मिल गया है, पर फिर भी उनको मेल जाता है, क्योंकि कई बार आप स्टूडेंट जो होते हैं 2 यूज़र आईडी पासवर्ड बना देते हैं, या एक ही ईमेल 2 यूज़र आईडी पासवर्ड में यूज़ हो जाता है।
इस वजह से ऐसे ईमेल जाते हैं। अगर आपको आपका आई कार्ड मिल गया है, एनरोलमेंट नंबर मिल गया है, तो कोई इशू ही नहीं है, इसका मतलब आपका एडमिशन कंफर्म है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जो बाकी डिटेल्स प्रोग्राम से मांग रही हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इंडक्शन मीटिंग में बताई जाती हैं। जनरली इंडक्शन मीटिंग अक्टूबर मंथ में खत्म हो जाता था, बट यूजीसी केप्ट ऑन एक्सटेंडिंग द डेट्स। अभी पहले उन्होंने डेट्स बढ़ाते गए, अभी 30 नवंबर तक किया है। जहाँ तक रही मटेरियल की बात, मटेरियल आपको दिसंबर में ही आएगा, दिसंबर एंड तक ही आप मान के चलिए। तब तक के लिए आप लोग सॉफ्ट कॉपी आपको यूज़ करना पड़ेगा मटेरियल का, जो भी है सारा सॉफ्ट कॉपी ई ज्ञान कोश पर अवेलेबल है, वहाँ से आप सॉफ्ट कॉपी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, सेशंस के लिए थियरी सेशंस होंगे, वो ऑनलाइन होंगे मोस्टली, और जो आपके प्रैक्टिकल सेशंस हैं उस पर अभी कुछ भी डिसीजन यूनिवर्सिटी ने नहीं लिया है कि वो ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे। बेसिकली ऑफलाइन ही होने चाहिए, पर ऑफलाइन अभी हो नहीं पा रहे हैं, तो ऑनलाइन होंगे भी या नहीं होंगे। ये ओवरऑल पिक्चर है, बाकी डिटेल्ड पिक्चर आपको इंडक्शन मीटिंग में मिल जाएगा। और वो अच्छा सर, अगर मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर्स के मेरे प्रोग्राम के, तो वो भी मुझे वो ऐप पे मिल जाएंगे क्या? ऐप पे भी जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ गूगल पे टाइप कर दीजिए इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको गूगल सीधे उस लिंक पे लेके जाएगा जहाँ पे 2005 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, दोनों सेशन के। ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अमन सहानी, ओके ठीक है, मेरे ख्याल में स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, जिनका रह गया। मनोज कुमार दुबे जी, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। मनोज कुमार दुबे, ठीक है। तेजस भोसले, ठीक है। शीतल बोंद्रे, हेलो हाँ बोलिए। सर, मैंने डीएनएच के लिए अप्लाई किया है। एक्चुअली मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए था न्यूट्रिशन में। सो वो कोर्स अवेलेबल है क्या अपने यहाँ? हमारे यहाँ मैम न्यूट्रिशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, और मास्टर डिग्री है डायरेक्ट, एमएससी डीएफएसएम, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड एंड न्यूट्रिशन। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूट्रिशन में नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और ये जो टर्म एंड एग्जाम्स है, ये जून में होगा ना? क्योंकि मैंने हाँ, अभी आपने एडमिशन लिया है तो जून में होगा। ओके ओके, फाइन फाइन। और जो ईमेल का है वो क्वेरी तो आपने अभी बता ही दी थी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो किसी और को कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल में, सारे स्टूडेंट्स का डाउट हो चुका है कंप्लीट। आगे आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपको, तो आप हमेशा हमको ईमेल कर सकते हैं rcmumbai@ignu.ac.in पे। और जैसा सर ने शुरू में बताया कि हर फ्राइडे एक मीटिंग होती है, ग्रीवियंस कैंप, ऑनलाइन ग्रीवियंस कैंप, ऐसे ही गूगल मीट से होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे फेसबुक पेज से मिल जाएगी, लिंक और अदर डिटेल्स। फ्राइडे को 11 AM को होता है, तो आप आके वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लेकिन वही स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, ऐसे स्टूडेंट्स आके जनरली सारे डाउट्स पूछते हैं, तो आप वहाँ डेफिनेटली आके, या कोई भी स्टूडेंट है वो वहाँ पे आके अपने डाउट्स पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं हमारे सारे रीजनल सेंटर स्टाफ को थैंक करता हूँ, हमारे रीजनल डायरेक्टर इंचार्ज सर को थैंक यू बोलता हूँ, और जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ आए उन सबको थैंक्स। फ्यूचर में भी हम इसी तरीके से ऐसे ही सेशंस करते रहेंगे जब जब ज़रूरत होगी, ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम ये मीटिंग क्लोज करेंगे। थैंक यू।